Hello students, once again a warm welcome to our online English class. Okay, today we will learn the third unit from first flight, that is two stories about flying. In this unit there are two parts. First one is his first flight and second one is a black aeroplane. Okay, today we will learn his first flight, that is the first part. Here, his first flight is written by Lion O. Flannery, born on 1896 and died or passed away on 1984. Okay, he is the 20th century writer. He is an Irish novelist and short story writer. He was one of the great writer in Irish, and this is the story about his first flight. Children, we know that one, flight. This is talking about flight, udna. So we can understand that this is talking about a bird or about an aeroplane. Okay. Now first one is talking about a bird. Okay. This is one of the small seagull story, and he tries to fly. That story is explaining in the first part. Okay. The theme of the story is the need for courage and self-confidence to overcome fears in life. Okay, everybody have fears, isn't it? So fear is one of the most dangerous feeling of block one's progress. Okay, so how can we overcome the fear? We can overcome the fear by courage and self-confidence. That is the story. Okay, now let us read the story. See, the young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sisters already flown away the day before. तो ये स्टोरी किसका बारे में है? एक सीगल, स्मॉल एक जो यंग सीगल का बारे में है, और वो सीगल फैमिली में 5 मेंबर्स के 3 यंग वन एंड फादर एंड मदर. ओके, तो ये जो यंग सीगल का बारे में बताया हुआ एक स्टोरी है. बाकी सब सीगल फैमिली है. दे आर sea bird family, or they are living near the sea, and they are eating something or some fish or catching some fish from the sea only, like that they are living. तो ये जो समुद्र का पक्षी है, वो ये जो सीगल नाम है, वहाँ पर एक वो सीगल फैमिली परिवार में एक यंग सीगल थे, और उसको उड़ने का कैसे सिखाया, ये तो कैसे वो उड़ने के लिए कोशिश किया. दैट इज द स्टोरी. तो यहाँ पर वो प्लॉट क्या है? समुद्र और उसका एटमॉस्फियर. ओके, सी एंड इट्स एटमॉस्फियर सराउंडिंग्स. तो यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाया है. ये एक सी है, समुद्र है, वास्ट एक्सपांस सी, एंड सम ऑफ द बर्ड्स, दीस आर द सीगल्स. सो फादर, मदर, यंग ब्रदर, सिस्टर, एंड वन ऑफ द यंग ब्रदर. देन अगेन वन इज सिटिंग ऑन द लेड्ज. यहाँ पर एक जगह पर एक तो बैठा हुआ है, और बाकी सब फ्लाई कर रहे हैं. ये तो दे आर फ्लाइंग इन द स्काई. दैट दिस इज द स्टोरी. ओके, नाउ द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेट्स से. यहाँ पर एक सीगल है, वहां पर अकेला बैठा है, और बाकी सब उड़कर फ्लाई कर रहे हैं. दे आर एंजॉयिंग देयर फ्लाइंग. Okay, then his two brothers and sisters. How many brothers he has? यहाँ पर personification यूज किया है. He means the bird, young seagull. Okay, तो his two brothers. How many brothers? 2 brothers के, और एक sister के. One sister is there. Had already flown. Flown is the third person of fly. Flown away the day before. एक दिन का पहले ये उड़कर जो अपना एंजॉय करने के लिए एंजॉय कर गया. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings to become afraid. तो ये दोनों ब्रदर्स और सिस्टर्स और पेरेंट्स भी गया है, और ये अकेले यहाँ पर बैठा है. से दिस इज कॉल्ड ledge of the hilly place. वहाँ पर वो अकेले हैं. Then who is alone? The young seagull. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. यहाँ पर क्या है? एक्सपैंस, EXPANSE means wide.
से ये जो ग्रेट एक्सपेंस वाइड अमाउंट ऑफ वाटर ये देखकर उसको डर आ गया है और उन्होंने क्या कर दिया है से द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ नीचे ये देखकर ये क्या कर दिया है एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन बहुत दूर तक है इसका एक्सपेंस वास्ट डीपनेस बहुत दूर तक है देन ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम उसका फियर क्या है अपना पंख अपना विंग्स नेवर सपोर्ट हिम ये क्या सोच रहे से जो बर्ड्स के उसको उड़ने के लिए मदद करते हैं ये तो हेल्प करते कौन सा है उसका विंग्स है तो इसका विचार क्या है ये अपना मेरा पंख बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं करेगा मैं तो ये वास्ट सी के अंदर गिर जाएगा और मर जाएगा ये फियर है देन इवन under the ledge where he slept at night say so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night तो ये बाकी सब उनका फैमिली मेंबर्स गया लेकिन ये अकेला यहाँ पर है तो यहाँ पर एक छोटा होल था उन्होंने क्या सोचा है मेरा विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेगा इसलिए वो अपना जो बीक तो अपना पंख का अंदर रखकर यहाँ पर एक होल था उसके अंदर जाकर सो गया वो रात में देन इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर क्या है 2 ब्रदर्स और एक सिस्टर के सिस्टर छोटी इससे भी छोटी है वो भी गया whose wings were far shorter than his own ran to the brink flapped their wings and flew away he failed to muster up courage muster up means what to gather up courage see muster muster means to gather up courage to take that finch then which appeared to him so desperate see take that plunge which appeared to him so desperate plunge means what dive तो ये क्या सोचा है अपना जो मेरा पंख से छोटा पंख है मेरा छोटी सिस्टर को और ब्रदर्स को फिर भी उन लोग उड़ गया लेकिन ये क्या सोचता है नहीं मेरा पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेगा ये सोचकर अपना डाइव करने के लिए नहीं है तो फ्लाई करने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा सोचकर वहां पर बैठा है बहुत निराश होकर डेस्परेट हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली से इसको क्या बुलाते हैं श्रीली मीन्स मीनिंग इज शार्प तुम थोड़ा शार्प हो जाओ आ जाओ श्रीली ये कौन बुला रहे फादर और मदर आकर बुला रहे आजा जल्दी आजा देन अप ब्राइडिंग हिम threatening to let him stray on his ledge unless he flew away but for the life of him he could not move तो लेकिन ये क्या हो गया है जो श्रीली बुलाते फिर भी वो क्या कर दिया है उड़ने के लिए तैयार नहीं उसको तो इतना डर है तो ये पेरेंट्स फेल हो गए पेरेंट्स कॉल्डिंग किया है डांटा है बहुत हार्ड वर्ड्स यूज किया नो रिजल्ट ये तो वहां पर बैठा है पत्थर का समान दैट वाज 24 hours ago तो ये कब का है 24 hours ago एक दिन का पहले हो गया ये इंसिडेंट देन सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम तब से 24 hours एक दिन से इनका ब्रदर्स नहीं तो सिस्टर नहीं तो फादर मदर नहीं आए उसके पास The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devote it. तो ये क्या है पेरेंट्स क्या कर दिया है उसका एक दिन पहले क्या कर दिया उसका जो दोनों ब्रदर्स और एक सिस्टर को कैसे उड़ना है कैसे प्रे करेगा नहीं तो कैसे एक फिश को कैच करेगा ये सब कुछ सिखाया ये भी ये देख रहे वहां बैठकर और क्या है और वन मोर इंसिडेंट भी देखा है क्या है सीन हिज ओल्डर ब्रदर उससे थोड़ा बड़ा एक ब्रदर थे वो क्या कर दिया है कैच हिज फर्स्ट herring इज वन काइंड ऑफ फिश तो टेस्टी फिश है उसको पकड़ा हुआ भी देखा है एंड डेवर मीन्स व्हाट ईट फास्टली ये फिश को मिला और बहुत जल्दी खाते हुए भी देखा कौन हु इज दैट पर्सन हिज एल्डर ब्रदर हु इज एल्डर ब्रदर दिस fearful seagull or young seagull's elder brother then
standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. तो क्या है, बहुत अच्छा एनकरेज कर दिया. किसको एनकरेज कर दिया? उसको एल्डर ब्रदर को, क्योंकि वो एक फिश को कैच किया और बहुत पेरेंट्स को बहुत खुशी हो गया और उसको एकदम एनकरेज किया. हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ये बोला. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, taunting him with his cowardice. Cowardice means what? Lack of bravery. Braveness नहीं, बिल्कुल डरपोक हो गया. Cowardice means डरपोक. और fearful person, ये fearful person को क्या कर दिया है, तो इतना टॉन्ट मारा है. हाँ जा, सभी लोग कर रहे, तुम क्यों ऐसा डरपोक होकर, नहीं ये तो कवर्ड होकर बैठते, ये बोलकर इसको एनकरेज कर रहे फिर भी आने के लिए. फिर क्या हो गया है, द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो हमेशा उसको ये जो यंग सीगल को कौन खिलाते हैं, अपना उसका मम्मी खिलाते हैं. और जो प्रेस लेके आते हैं, नहीं ये तो फिश को, नहीं ये तो कुछ भी चीज को लेके आते हैं और उसका मुंह में डाल कर देता था. लेकिन ये 24 आवर्स से ये इन लोग क्या सोचा है, अभी मैन का फादर क्या बोला है, ये जो सीगल को, यंग सीगल को बिल्कुल खाना खिलाना नहीं, खुद उड़ने दो. ये सोचकर ये सब लोग उठ कर गई और 24 आवर्स हो गया. उसको बहुत भूख लगा. ये जो सन भी आ गया तो उसको बहुत हीट लगने लगा, क्योंकि कुछ भी खाया नहीं रात को. वो He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. पहले रात से कुछ भी खाया नहीं. Then he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. से क्या कर दिया है, वो सोते हुए नाटक कर दिया. प्रिटेंड नाटक कर दिया. क्या करने के लिए, इनका जो पेरेंट्स है और ब्रदर्स और सिस्टर है, इन लोग इसको देखने दो. ये यहाँ पर आ गया, फिर एक लेग में खड़ा हो गया और वो सोते जैसे प्रिटेंडेड किया, नाटक कर दिया, क्योंकि ये जो उसका ब्रदर्स और सिस्टर्स वापस आने दो और उसको खिलाना दो, ये सोचकर. असली में ये सो रहे नहीं. देन ये नाटक कर दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, tossing with their heads sunk into their necks. तो वहां से देखते तो थोड़ा ऊंचा जगह पर ये ब्रदर्स और सिस्टर क्या करते हैं, आराम से सो रहे. Then his father was preening the feathers on his white back. Preening means what? Smoothing. अपना जो बीक को स्मूथनिंग कर रहे. फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. तो ये पूरा फेदर्स को अपना जो मुंह से साफ कर रहे, स्मूथनिंग कर रहे. कौन? फादर इज preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, ओनली मदर देख रहे दूर बैठकर. Then she was standing on a little high hump on the plateau. वो plateau में थोड़ा ऊंचे जगह पर खड़ा है और her white breast thrust forward. Now and again she stared at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Wet means what? Sharpen it. तो ये क्या है? तो मदर ओनली उसको देख रहे. वो मदर दूर एक ऊंचा जगह पर बैठते हैं. उसका पैर में क्या भी है, एक फिश भी है. और वो देखकर ये भी हमारा यंग सीगल देख रहे. ये भी देखने के समय इसको बहुत खाने के लिए इच्छा हो गया. देन क्या हो गया है, का गा गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. तो ये क्या कर दिया है, वो यंग सीगल रोने लगा, चिल्लाने लगा, कर चिल्लाने लगा. देन शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. बहुत जो उसको तो रोना, इतना रोने आ गया, कोई भी ध्यान नहीं कर रहे. मदर भी ध्यान नहीं कर रहे. उसका जो फिश है वो मुंह में डालने के लिए नहीं आ रहे. वो और क्या हो गया, बट ही केप्ट कॉलिंग
plaintively, and after a minute or so he uttered joyful scream. और क्या है? But he kept calling plaintively और sorrowfully बहुत दुखी होकर बुलाने लगा. And after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. तो बहुत खुशी हो गया, जो खुशी से वो रोने लगा, क्योंकि वो मदर एक तो प्रे लेकर, नहीं तो एक खाने का चीज लेकर आ रहे, उसके पास आ रहे. Then he leaned out eagerly. से हाँ ऐसे बेटा, और अभी मेरा मुंह में मम्मी आकर क्या डालेगा, कुछ खाना डालेगा, ये सोचकर वेट कर रहे. Then tapping the rope with his feet, हाँ ऐसे पंख को हिलाकर वो बैठते. Trying to get nearer to her as she flew across. तो ये क्या है, मम्मी इधर आते तक ऐसे कैच करने के लिए तैयार रेडी होकर बैठते. हमारा यंग सीगल किसके लिए वेट कर रहे हैं, अपना फूड के लिए. कौन लेके आते हैं, मदर इज ब्रिंगिंग सम ऑफ द प्रे और फिश. तो वो देखकर बहुत खुशी हो गया, तैयार बैठी है. बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. तो ये क्या कर दिया है, मदर तो बिल्कुल नहीं आया, पास तक आ गया, फिर वापस गया. और ये जो हमारा यंग सीगल को इतना गुस्सा आ गया, और क्यों नहीं आ रहे मेरा मदर, मुझे खाना क्यों खिला रहे नहीं, ये बोलने लगा. और उसको बहुत गुस्सा आया, दुख आ गया. He waited a moment in surprise. तो इसको हैरान हो गया, मेरा मदर हमेशा हमको खिलाते, मुझे खिलाते, लेकिन अभी क्यों खिलाया नहीं, क्यों उधर वापस जा रहे. विथ a loud scream he fell towards and downwards, say outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. और क्या है, तो ये क्या कर दिया है, ये जो अभी प्रे जो फूड लेके आएगा सोचकर ये बैठा, लेकिन आया नहीं. तो नेक्स्ट मोमेंट में ये पकड़ने के लिए बैठा था, तो क्या हो गया है, द विंड रश्ड. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. तो यूं आ गया है, तो हवा से इसको जो नीचे का वो जो जगह से वो उठ गया, तो उसको अपने आप को वो विंग्स मूवमेंट होने लगा. और क्या हो गया है, then he flapped his wings once and he soared upwards, ga ga ga, go grass. Or his mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. तो ये क्या कर दिया है, मदर तो फुट लेके आते हैं, वो पास तक नहीं आया, यहाँ तक आ गया, फिर वापस गया. और उसका जो फैमिली पूरा है वहां पर फादर एनकरेज कर रहे, गा गा वुड 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 बोलकर उसको एनकरेज कर रहे, और ब्रदर्स और सिस्टर्स सामने से उड़ने लगा. ये सब कुछ सीन किस लिए क्रिएट कर रहे, वो भी उड़ने दो सोचकर. और क्या हो गया है, then he completely forgot that he had not always been able to fly. तो क्या है, इसका पैर तो ऑलरेडी यहाँ से उड़ा है और हवा आ गया, वो कोशिश किया जो डाइव करने के लिए नहीं है तो फ्लाई करने के लिए, तो मूव होने लगा. तो इसको इतना खुशी हो गया है, तो ये क्या सोचा है, से completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shaking silly. और क्या है, तो अपने आप को
क्या कमेंट कर दिया है, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। ये आवाज कहाँ से आया, हमारा यंग सीगल का अंदर से आया। तो उसको बहुत खुश हो गया और खुशी से वो उड़ने लगा। Then he was nearer the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges. Ridges means what? Wave or edges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. So, और क्या है, बहुत amusedly means बहुत pleasantly. तो बहुत खुशी से वो खाओ खाओ करने लगा। पहला खाओ खाओ किस लिए किया है, फूड के लिए। अभी खाओ खाओ क्यों कर रहे, बहुत खुशी हो गया, वो उड़ने लगा। Then his parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him. Beckoning means what? Signal देते, signaling to him. Calling shrilly, shrilly, shrilly calling, बुला रहे। और he dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted, tired हो गया तो बहुत उड़ने लगा। बस ट्रिप क्या हो गया है, उड़ा, वो बहुत अच्छा से कोशिश किया और डाइव किया और आगे बढ़ा। तो बहुत अच्छा, फैमिली पूरा को बहुत खुशी हो गया। उन लोग क्या इनकरेज कर दिया, श्रिली श्रिली अगेन 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 करने लगा। तो ये टायर्ड हो गया। और बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, कौन सा स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वाई ही इज टायर्ड, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। बहुत पहले बार ये उड़ने के लिए कोशिश किया, वो स्ट्रेंज एक्सरसाइज हो गया। बहुत कोशिश किया, खुशी से कोशिश किया। Or his feet sank into green sea, and then his belly touched it and sank no further. और क्या है, ये यहाँ तक तो उड़ कर गया, फिर वापस आ गया यहाँ तक। ये सी का ऊपर से कैसे एक फिश को कैच कर सकते, वो सीखने के लिए इसको ऊपर से जाना पड़ता है। तो यहाँ से गया वो, sank no further, तो उसका अंदर गिरा नहीं, डूबा नहीं, लेकिन उसको ऊपर से चलने लगा। What he was floating on it, तो ऊपर से ऐसा फ्लोट कर कर जाने लगा। और and around his family was screaming or praising him, and their beaks were offering him scraps. Scraps means what? जो small pieces of the dogfish. Dogfish is one of the tasty fish. तो ये फिश का पीसेस अभी कौन देते, उनका फैमिली मेंबर्स पूरा उनको क्या खिलाते, फूड खिलाते। तो उसको बहुत खुशी हो गया। तो ये क्या है, he had made his first flight, that is his first flight. तो यहाँ पर जो डरपोक अगर कवर्ड बनकर बैठेगा तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या हम पढ़ना चाहिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वैसे एक प्रोवर्ब है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमको जब भी जरूरत, इतना जरूरत आएगा तभी हम कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करेगा। यहाँ से हम क्या सीखा है, से नीड फॉर करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू ओवरकम फियर्स इन लाइफ। इसका समान यंग सीगल का समरी ऐसा है, एक यंग सीगल अपना फियर का वैसे उड़ने के लिए बहुत डरपोक होकर कवर्ड बनकर बैठा था, लेकिन इनका फैमिली मेंबर्स का द्वारा, पेरेंट्स का द्वारा वो क्या कर दिया है, उड़ने के लिए सीख लिया। एक तो पनिशमेंट दे दिया 24 आवर्स, उसको खाना खिलाया नहीं, तभी वो क्या कर दिया है, नेसेसिटी हो गया, उसको कुछ खाने के लिए नेसेसिटी हो गया। तो वो उड़ने के लिए कोशिश किया, तो उड़ने कोशिश तो किया, कदम तो रखा, फिर आगे ऐसा उड़ने लगा। दैट इज द स्टोरी। तो यहाँ पर थीम ये है, whenever you have fear, you must command that fear, go away from me. तभी हम लोगों को क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। दैट इज द मोरल। तो सपोज दैट आप लोगों को है ना, जो फियर, एग्जाम का फियर होगा, बोर्ड पेपर का फियर होगा, ये सभी फियर आने के समय हम क्या कर रहे हैं, ये हम सीखना है ये स्टोरी से। क्या बोलना है, नो 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 फियर, फियर गो अवे, ये डांटना है, तभी हमको अपने आप करेज आएगा, करने के लिए हिम्मत आएगा, तो हम आगे बढ़ेगा। दैट इज द स्टोरी। ओके, रिमेनिंग सेकंड पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, go through the exercise. Okay, bye.